Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about the first topic of teaching aptitude or teaching attitude. देखो RIC का एग्जाम हो या फिर CUCT का एग्जाम हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। RIC का एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं और CUCT का एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर 30 क्वेश्चन इन RIC and 50 questions in CUCT. So if you are preparing for CUCT, teaching aptitude or attitude is very very important, as well as if you are preparing for RIC, ये भी बहुत ज़्यादा important होता है। RIC के लिए दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while attending the questions, and अगर आपका concept clear हो जाएगा एक बार, if your concept is clear, you can easily attend all the questions, 50 out of 50 questions from CUCT and 50 out of 50 question in your RIC exam also. So what is the first topic? The first topic is attitude towards education, children and teaching profession. Okay, all these are first part, first topic. Second topic is teaching interest. Third topic for RIC is teaching leadership qualities and group management. Fourth topic is emotional social adjustment. Fifth topic is intrapersonal and interpersonal skill, and sixth topic is general awareness of contemporary issues pertaining to school education. There are 6 topic in RI, but more than that in CUCT. CUCT point of view से हम कुछ ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं। सो RIC के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे और CUCT के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्सीमेटली वी विल डिस्कस 10 टॉपिक्स। सो व्हाट आर द 4 टॉपिक्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अभी हम लोग RIC को फोकस करेंगे। वी विल फोकस ऑन RIC एग्जाम। So in this video, this will be means this series which both for RIC aspirant as well as CUCT aspirant। तो दोनों जो बैच है, सुपर 50 बैच फॉर RIC या फिर क्रैश कोर्स बैच फॉर RIC और क्रैश कोर्स बैच फॉर CUCT, दोनों ग्रुप के एस्पिरेंट्स के लिए ये यूजफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स children and attitude towards teaching profession. So let's start. Now what is an attitude first? If questions come what is an attitude, or suppose someone asks you what is an attitude, अगर कोई आपसे पूछता है कि attitude क्या है तो आप क्या आंसर दोगे? Attitude is a tendency to react in a certain way towards stimuli, an object or person। ये एक टेंडेंसी होता है to react in certain way, किसी भी प्रकार का स्टिमुलस हो, ऑब्जेक्ट हो, पर्सन की तरफ जो हम रिएक्शन करते हैं, द टेंडेंसी दैट वी शो ओके और रिएक्ट in certain way okay towards different kinds of stimuli, different object or person, that is called attitude। उसी को attitude कहा जाता है जो हम रिएक्शन करते हैं डिफरेंट स्टिमुलस, ऑब्जेक्ट और पर्संस के ऊपर। सो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज दैट, इट इज दैट थिंकिंग ऑफ आवर्स, हम जो सोचते हैं, विच इज मैनिफेस्टेड इन आवर बिहेवियर, जो सोचते हैं वो हम बिहेवियर में दिखाते हैं। जब समय आता है जो हमारा सोच होता है वही हमारा बिहेवियर होता है। ठीक है, जैसा सोचते हैं वैसा हमारा बिहेवियर होता है। that is attitude, that is our attitude, okay, the behavior that you show। and our behavior towards there is these is our behavior toward this is actually guided by our attitude। जो हमारा behavior होता है वो हमारा attitude के द्वारा directed और guided होता है। हमारा attitude जैसा होगा हमारा behavior दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति, दूसरे स्टिमुलस के प्रति उसी के अनुसार होगा। सो एटीट्यूड डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, एटीट्यूड डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, एटीट्यूड डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ ए टीचर, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इट इज एक्चुअली a stable system of cognitive, affective and action tendency component indicating towards an object, event and or person। ये एक स्टेबल सिस्टम है ऑफ कॉग्निटिव, effective and action tendency component that is indicating towards an object, event or person। ठीक है, ये इसमें देखो कॉग्निटिव भी है, इफेक्टिव है और साइकोमोटर भी है। साइकोमोटर मीन्स मसल मूवमेंट, एक्शन। कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग फ्रॉम माइंड, माइंड से जो सोचते हैं हम लोग। इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव डोमेन जो ये हमारा ओके। सो कॉग्निटिव मीन्स मेंटल, जो हम दिमाग से सोचते हैं। इफेक्टिव मीन्स इमोशनल, जो हमारा इमोशन से रिलेटेड होता है। और एक्शन साइकोमोटर, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइकोमोटर टेंडेंसी, मीन्स जो हम मसल मूवमेंट करते हैं, जो हम खुद से एक्शन करते हैं। सो इट इज एक्चुअली स्टेबल सिस्टम ऑफ ऑल दिस 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड
psychomotor domain. Cognitive means for mind, affective for your emotion, and action for your मसल्स. ओके, सो टेंडेंसी कंपोनेंट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इवेंट के ऊपर और पर्सन के ऊपर हम जो रिएक्ट करते हैं, एक उसका स्टेबल सिस्टम होता है एटीट्यूड. एंड दस एटीट्यूड हैज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस एंड डिग्री ऑफ ए पर्सनस एटीट्यूड वेरी फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू मोस्ट अनफेवरेबल. एटीट्यूड जो होता है ऑब्जेक्ट से डिफाइंड होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के ऊपर वो काम करता है. देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, ऑन दैट एटीट्यूड विल वर्क. ओके, एंड द डिग्री ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड, कितना आपका एटीट्यूड कैसा है, बहुत अच्छा है या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा है, ये वेरी करता है. हर एक आदमी के अंदर सेम एटीट्यूड नहीं होता. किसी का बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है तो किसी का बहुत ज्यादा बुरा एटीट्यूड या फिर अनफेवरेबल एटीट्यूड होता है. The tendency of a person to react towards objects or events when repeated in a similar way in a number of situations is called attitude. Okay, tendency of a person to react towards object, हमारा जो tendency होता है कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ रिएक्ट करते हैं, दूसरे इवेंट्स की तरफ रिएक्ट करते हैं, जो कि सिमिलर मैनर में रिपीटेड होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. जब भी कोई एक सिचुएशन आता है तो उस काइंड ऑफ उसी सिचुएशन को मैच करते हुए एटीट्यूड हमारा शो करते हैं. ठीक है, उसी को एटीट्यूड करते हैं. जो हम चीज, जो रिएक्शन हम करते हैं, द रिएक्शन दैट वी शो अपॉन ए सिचुएशन इज नोन एज एटीट्यूड. नंबर ऑफ टाइम वो सिचुएशन आएगा तो नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारा जो बिहेवियर है और रिएक्शन है वो रिपीट होगा. दैट इज नोन एज एटीट्यूड. Attitude means the behavior. Attitude means it is one kind of behavior, and that's why I told attitude determines the behavior of an individual. That you have to remember. And one more thing also you have to remember: attitude differs from an opinion in the following ways. Attitude differs from an opinion in the following ways. किस opinion से attitude differ करता है? देखो, attitude is generally rigid, but opinion can change very easily. Attitude जो होता है वो rigid होता है, ओपिनियन जो है वो चेंज हो सकता है. एटीट्यूड एक किसी का, बोलते हैं ना, यू हैव सीन 3 इडियट मूवी, यू मस्ट हैव सीन 3 इडियट मूवी. अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना. वहां पे जो राजू रहता है, राजू सुइसाइड करता है. आपको पता है ना, राजू सुइसाइड अटेम्प्ट करता है बिकॉज उसको चुनना पड़ता है कि वो जो रणछोड़ दास का साथ छोड़े या फिर उसके या फिर मतलब कॉलेज में रहे. ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वो छलांग लगा देता है प्रिंसिपल के चैम्बर से नीचे. ठीक है, उसके बाद उसका इंटरव्यू रहता है. आप सब देखे होंगे वो मूवी. वहां पे बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल से आया. वो इंटरव्यू में क्या बोलता है, वो इंटरव्यूअर्स बोलते हैं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कर दीजिए, ये इतना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड हमारे कंपनी के लिए अच्छा नहीं है. लेकिन राजू क्या बोलता है, बहुत मुश्किल से आया ये एटीट्यूड, इतने मतलब दोनों टांगे तुड़वा के, हड्डियां तुड़वा के एटीट्यूड आया है. बोलता है ना, बहुत मुश्किल से आया ये एटीट्यूड, आप अपना मतलब जॉब रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ. दैट मीन्स एटीट्यूड इज वेरी रिजिड. एटीट्यूड इजीली चेंज नहीं होता किसी इंसान का. लेकिन ओपिनियन कभी कभी अगर हम गलत ओपिनियन लेते तो हम ओपिनियन चेंज करते हैं. ओपिनियन इजीली चेंज होता है एंड विथ लेस इफर्ट्स ऑफ अदर. ज्यादा इफर्ट लगाना नहीं पड़ता ओपिनियन चेंज करने के लिए, लेकिन किसी का एटीट्यूड चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. एटीट्यूड कैन बी ग्रेडेड फ्रॉम most favorable to most unfavorable by indifferent, but opinion is always in yes or no. opinion सिर्फ yes or no होता है, लेकिन attitude most unfavorable से most favorable या फिर बहुत ही अच्छा से बहुत ही बुरा हो सकता है. ठीक है, total opinion of a person on the basis of his belief, feelings. Okay, readiness of action is equally his attitude. Total opinion of a person on the basis of his belief, feelings and readiness of action is equally his attitude, while opinion is guided mostly by feelings. किसी एक व्यक्ति का जो पूरा सब कुछ मिला के जो ओपिनियन होता है, ओके, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिलीफ. जो उसका सोच है, जो उसका फीलिंग है, जो किसी काम करने का रेडीनेस है, उसी के बेसिस पे किसी का ओपिनियन डिटरमाइन होता है. लेकिन हाँ, और वो सब कुछ किसके द्वारा गाइडेड होता है, जितने भी ओपिनियन है, ऑल द ओपिनियन इज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, जो कि बिलीफ, फीलिंग्स और रेडीनेस ऑफ एक्शन से डिटरमाइन होता है. लेकिन ओपिनियन सिर्फ फीलिंग से डिटरमाइन होता है. Opinion is only guided by feelings, but attitude is guided by belief, feelings and readiness, or the total opinion of a person. That you have to remember. ठीक है, किसी का जो सोच है, मतलब वो सिर्फ फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो एटीट्यूड होता है वो
पूरा बिलीफ, फीलिंग्स, रेडीनेस टू एक्शंस, मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों डोमेन के ऊपर वो डिटरमाइन और उसी के बेसिस पे होता है। एटीट्यूड रिजिड होता है एंड इट मे टेक्स इयर्स टू चेंज एनी एटीट्यूड, बट ओपिनियन कैन चेंज इन ए मिनट। अगर एटीट्यूड चेंज होता है नहीं होता है, या फिर रिजिड है कि नहीं, अगर कंफ्यूज होते हो तो जरूर थ्री इडियट का वो मूवी का सीन याद रखना, जो मैंने आपको बोला, राजू का सीन बोलता है ना कि बहुत मुश्किल से आया ये एटीट्यूड। ओके, मैं इसको इजीली नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। एटीट्यूड इज वेरी रिजिड, बहुत सारे लग जाते हैं एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, लेकिन ओपिनियन जो है हम जल्दी जल्दी बदल सकते हैं। फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू अनफेवरेबल, पीपल कैन डिवाइड इनटू मेनी होमोजेनियस ग्रुप on the basis of their attitude, but such groups will only two if opinions is taken into account। हम एटीट्यूड के अनुसार अगर लोगों को डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा ग्रुप बनेगा। मोस्ट फेवरेबल से अनफेवरेबल के बीच में बहुत सारा एटीट्यूड का ग्रुप बनेगा, मेनी होमोजेनियस ग्रुप्स बन सकते हैं। बट if we divide the people on the basis of opinion, then we can divide opinion in favor of a thing or opinion जो कि अगेंस्ट थिंग होगा। ओपिनियन फेवर में या फिर अगेंस्ट में हो सकता है, तो ओपिनियन के बेसिस में दो ही टाइप के लोग हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, then we can know the attitude of a person on the basis of his verbal and motor behavior। उसका जो बातचीत और उसका जो मूवमेंट से हम लोग उसका एटीट्यूड देख सकते हैं। बट इफ समवन इज नॉट विलिंग टू मैनिफेस्ट इट, ही कैन डू सो। अगर कोई अपना एटीट्यूड छुपाना चाहता है तो वो छुपा भी सकता है। देयर इज नो मैकेनिज्म टू नो द रियल एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। आदमी अपना एटीट्यूड छुपा सकता है on our will, except projection of a person whose interpretation may vary from examiner to examiner। हम जिस तरह से किसी को एग्जामिन करेंगे उसका एटीट्यूड हमको वैसा लगेगा, और डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ एटीट्यूड हम देख पाएंगे। दस इंक्वायरी मेथड जो है एटीट्यूड जानने के लिए सबसे वर्स्ट मेथड होता है। याद रखना, which method is the worst method for knowing attitude of a person, देन इट इज इंक्वायरी मेथड। रिमेंबर, किसी को पूछने से उसका एटीट्यूड हम आराम से नहीं देख सकते, किसी को ऑब्जर्व करने से उसका एटीट्यूड जान सकते हैं, खाली क्वेश्चन पूछने से एटीट्यूड नहीं जान सकते। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस स्टार, ओके, और राइट दिस पॉइंट इन योर कॉपी सो दैट याद रहेगा आपको। अब आते हैं टीचिंग एटीट्यूड के ऊपर। हमने एटीट्यूड को समझ लिया बहुत अच्छी तरह से, अब आते हैं टीचिंग एटीट्यूड के ऊपर। इट इज दैट स्टेबल एंड एंड्यूरिंग बिहेवियर ऑफ ए टीचर which is manifested after being influenced by all the three domains of behavior, that is cognitive, affective and psychomotor। मैंने समझाया था ऑलरेडी आपको कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर क्या होता है। ओके, इट इज दैट स्टेबल और एंड्योरिंग बिहेवियर ऑफ ए टीचर, जो कि मतलब एक स्टेबल है बिहेवियर, स्टेबल और एंड्योरिंग बिहेवियर जो एक टीचर के अंदर रहता है, जो टीचर मैनिफेस्ट करता है अपने तीनों डोमेन का इस्तेमाल करके, तीनों डोमेन के द्वारा इन्फ्लुएंस होके। इट कैन बी इन फेवरेबल और अनफेवरेबल बोथ डायरेक्शंस ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। इफ एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स द होल टीचिंग प्रोसेस इज पॉजिटिव, हिज टीचिंग विल बी गुड। अगर किसी का टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग एक टॉपिक है ना RIC का आपका, कि टीचिंग इंटरेस्ट सेकंड टॉपिक जो है, मतलब किसी के इंटरेस्ट अगर सही होगा, अच्छा होगा, एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स द होल टीचिंग प्रोसेस इज पॉजिटिव, देन हिज टीचिंग विल बी गुड। अगर उसका टीचिंग इंटरेस्ट ही सही नहीं होगा, टीचिंग के ऊपर उसका अगर एटीट्यूड रॉन्ग होगा, इन उसका अगेंस्ट में होगा, तो नेगेटिव एटीट्यूड होने से टीचिंग जो है उसका खराब होगा, विल मे गो इनटू हेल। कोई समझ नहीं पाएगा, उस टीचर को कोई पसंद नहीं करेगा। ओके, अगर उसका एटीट्यूड टीचिंग प्रोसेस के ऊपर सही रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसको सब पसंद करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रियल एटीट्यूड। किसी का रियल एटीट्यूड जानना इतना आसान नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला, किसी को क्वेश्चन पूछ के उसका एटीट्यूड हम नहीं जान सकते। वी कैन, हम चाहे तो अपना एटीट्यूड को छुपा भी सकते हैं। वी कैन हाइड इट डेलिबरेटली एज वेल। ओके, हम अपना एटीट्यूड को छुपा सकते हैं। क्लियर, हम अपना एटीट्यूड को छुपा सकते हैं। If if projective technique is used for this purpose, again the problem of subjective interpretation, time taking procedures are seen। ओके, अगर प्रोजेक्टिव टेक्निक हम यूज करेंगे एटीट्यूड जानने के लिए, तो प्रॉब्लम भी आता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन में, अच्छे से हम नहीं जान पाएंगे, टाइम टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए मार्क्स ऑब्टेन इन B.Ed एग्जामिनेशन कैन आल्सो बी इंडिकेटर ऑफ नोइंग द एटीट्यूड। हम किसी का मार्क्स से भी जान सकते हैं उसका एटीट्यूड कैसा है, कैसे वो लिखा है एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, का आंसर किस तरह से किया है, वो भी उसका एटीट्यूड मतलब
बता सकता है। इसीलिए जो बीएड एंट्रेंस देते हो, RICE हो या फिर CUCET हो, इसीलिए आपको टीचिंग एटीट्यूड पूछा जाता है। वाई दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड, दिस में बी ए क्वेश्चन, वाई एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बिकॉज दिस शो योर एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशन। अगर आगे जाके आप टीचर बनते हो तो आपका किस तरह का एटीट्यूड होगा, दिस इज इंडिकेटेड बाय द एग्जामिनेशन, बाय द मार्क। अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का मार्क ज्यादा है, दैट मीन्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन इज गुड। Clear? That's why this topic is included in your syllabus, and that's why it is the first topic also. RICE में भी फर्स्ट टॉपिक है, और CUCT का तो पूरा सिलेबस का ब्रेकेज नहीं है, लेकिन मैं आप एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा क्या क्या टॉपिक आपको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। तो RICE के एग्जाम में इसलिए ये पूछा जाता है, एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, मार्क्स बताएगा कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है, बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग माइट हैव रीइंफोर्स्ड हिम टू वर्क हार्ड एंड हार्डर। अगर जिसका, देखो आप लोग मेरे से प्रिपरेशन ले रहे हो, ओके, यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम DCS लर्निंग, व्हाई नॉट यू आर नॉट, व्हाई नॉट यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, because you have positive attitude toward teaching or education. That's why to get good mark or to get good knowledge, especially to get good knowledge about teaching attitude, you people are taking coaching from us, and that means what, you are working hard or harder, that is influencing by your positive attitude towards education, जो कि आपका मार्क से पता चल जाएगा एग्जाम में और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? A teacher comes in contact with the following object, situation or person in teaching learning process. ओके, क्या क्या चीज के कांटेक्ट में आता है एक टीचर, क्या क्या ऑब्जेक्ट, क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या पर्सन के कांटेक्ट में एक टीचर आता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एजुकेशन सिस्टम इज टीचर एंड स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो होते हैं टीचर और स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट के साथ कॉन्टेक्ट में आता है, स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड द क्लास। उसके बाद वो जो पढ़ाता है टेक्स्ट बुक उसके साथ रहता है, टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट उसके साथ रहते हैं, और पूरा होल करिकुलम उसके साथ रहता है। करिकुलम के अंदर टेक्स्ट बुक भी रहता है, कुछ हिडन करिकुलम भी रहता है जो हम वर्बली बच्चों को सिखाते हैं, अपने एक्शंस के थ्रू सिखाते हैं। ठीक है, सो करिकुलम मीन्स इट इज ब्रॉड थिंग, ओके, दिस इज नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक और कंटेंट। करिकुलम के अंदर बहुत सारी चीज रहता है, वो बाद में हम लोग देख सकते हैं। ये तो RIC के एग्जाम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, CUCT एग्जाम के लिए करिकुलम के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट मैं दोनों को बता दूंगा। अदर कोलिग्स ऑफ टीचर, अदर कोलिग्स के साथ भी हमारा रिलेशनशिप होता है, हम उनके कांटेक्ट में भी आते हैं। और एटीट्यूड टुवर्ड्स, इसीलिए स्टूडेंट, एटीट्यूड टुवर्ड कोलिग, ऐसा भी, और टीचिंग प्रोफेशन, मतलब ये सब के ऊपर भी एटीट्यूड कैसा, ये आपका क्वेश्चन आपका सिलेबस में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, क्लियर? प्रिंसिपल एंड अदर ऑफिसर ऑल्सो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग ऑफिसर के साथ भी हम कॉन्टेक्ट में आते हैं। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री के हम उसके भी कॉन्टेक्ट में आते हैं। अपना खुद का टीचर्स ओन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट फैक्टर और स्टेक होल्डर आप बोल सकते हो। सोशल चेंज जो होता है सोसाइटी में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी कम इन कंटैक्ट। टीचर का ओन पर्सनैलिटी, हमारा खुद का पर्सनैलिटी हमको बहुत जगह पे रोकता है कुछ गलत करने के लिए, या फिर अपना अच्छा पर्सनैलिटी की वजह से हम दूसरों का जो है जो मन जीत सकते हैं, स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी के द्वारा मोटिवेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर, अगर आप अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो हम अच्छे से सबके साथ अपना एटीट्यूड अच्छा रहेगा, सबके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। गार्जियन जो होते हैं और जो पेरेंट्स बोल सकते हैं और अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप रहता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग process. Now, when a teacher comes in contact with the above situation or stimuli, his attitude towards them is manifested, which can be positive or negative, both, and attitude may have many degrees or grades in each dimension. Example, most favorable, indifferent, etc. All these 10 stimuli or situation that determine and guide our attitudes are given below. ये जो चीज है जो हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करता है, ये 10 स्टिमुली के बारे में हमने देखा, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन योर सिलेबस, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन आर द 3 इंपॉर्टेंट बीट्स ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन मतलब स्टूडेंट, सेम थिंग है। हमारा एटीट्यूड, एक टीचर का एटीट्यूड, या फिर जो एंट्रेंस दे रहे हो आप लोग, RIC का एग्जाम दे रहे हो, आपका एटीट्यूड जब आप टीचर बन जाओगे तो आपका एटीट्यूड स्टूडेंट के ऊपर कैसा रहेगा, दिस इज ए क्वेश्चन। ओके, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड इक्वल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन बाय वन जो क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ वीडियो मैंने आपको दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यू शुड सी देम, यू शुड वॉच देम। ओके,
यू शुड वॉच दिस वीडियो। अगर नहीं मिला आपके ग्रुप में तो बाद में मिल जाएगा, बाद में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड इक्वल। कोई भी स्टूडेंट वो भले ही मतलब जो है क्या बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप हो, मेंटली हैंडीकैप हो, किसी भी प्रकार के हैंडीकैप स्टूडेंट हो या फिर कोई रिच हो कोई पुअर हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल एज ह्यूमन बीइंग। And but if we view them with an exploratory vision, then we would come to know that every student is a unique living being। हमारे सामने अपने नजर में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब लोग इक्वल हैं, ह्यूमन बीइंग है सब लोग, सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट जो है यूनिक लिविंग बीइंग होते हैं, क्योंकि सबका जो इकोनॉमिक कंडीशन सेम नहीं होता, फिजिकल कंडीशन सेम नहीं होता, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, मेंटल कंडीशन सेम नहीं होता, ओके, नॉलेज सेम नहीं होता, तो यूनिक होते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट। एंड दैट्स व्हाई इंडिविजुअल डिफरेंस एक चीज है जिसको हमको एक टीचर को पढ़ाते समय इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखना पड़ता है। एक टीचर को पढ़ाते समय इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर यूनिक लिविंग बीइंग। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ए यूनिक लिविंग में। देखो एवरी के साथ, देखो यहाँ पे इंग्लिश का भी एक बता देता हूँ, एवरी के साथ ईच एंड एवरी जो जब होता है ना वहां पे ईच मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होता है, प्लूरल यूज नहीं होता। ईच एंड एवरी जब होता है वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है, नॉट प्लूरल। आर नहीं होगा यहाँ पे, ईच होगा। वॉच और वेयर होता तो यहाँ पे वॉच होता, वेयर नहीं होता। नाउ सम कंडीशन ट्रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। स्टूडेंट्स के अंदर क्या रहता है, स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड एज क्लीन स्लेट। एक क्लीन स्लेट मतलब स्लेट आपको पता है, क्लीन स्लेट, स्लेट के ऊपर बच्चा लिखता है, तो क्लीन स्लेट मतलब उनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है। टीचर एक ऐसा इंसान है जो कि उसके ऊपर लिखता है, फैमिली उसके ऊपर लिखते हैं, नाइबरहुड उसके ऊपर लिखते हैं, मतलब टीचर फैमिली नाइबरहुड सबका इन्फ्लुएंस उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। A little child is just like a clean slate. Nothing is written on this slate systematically before it's coming to school। जब तक वो स्कूल में नहीं आता है उसके ऊपर मतलब उसके माइंड जो उसका माइंड जो क्लीन स्लेट है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। He learns many things from his family, from his neighborhood, but school shapes those learning in a desirable manner। फैमिली से बहुत सारा चीज सीखता है, नाइबरहुड से बहुत सारा चीज सीखता है, लेकिन जब वो स्कूल आता है, जब वो स्कूल आता है स्कूल में उसका जो है जो भी चीजें सीखना चाहिए एक डिजायरेबल मैनर में उसके अंदर भरा जाता है, उस स्लेट के अंदर भरा जाता है। स्लेट इस तरह का होता है, तो स्कूल में बहुत सारा चीज इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से भरा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज डिजायरेबल मैनर में, जैसे कि सोसाइटी को चाहिए। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो मैं लाइव क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन लोगों ने मेरा लाइव क्लास किया होगा, मैंने बहुत बार बोला है कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेनली दो चीज के ऊपर ध्यान रखना। द एजुकेशन सिस्टम एट प्रेजेंट और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट के ऊपर बेस करता है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। टीचर जो बोलेगा वो नहीं चलेगा, स्टूडेंट जैसा बोलेंगे उस तरह से चलेगा। स्टूडेंट सेंटर एज वेल एज सोसाइटी सेंटर्ड। सोसाइटी को जिस तरह का एजुकेशन चाहिए, जिस तरह का सिटीजन चाहिए, हम बच्चों को उस तरह का नॉलेज देते हैं और उस तरह का सिटीजन बनाते हैं। तो आजकल का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर एंड सोसाइटी सेंटर्ड रहता है। रिमेंबर दिस थिंग, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन आता है। दिस टू थिंग, दिस इज कोड वर्ड। इस तरह का बहुत सारा कोड वर्ड आगे भी आपको मिलता रहेगा। कोड वर्ड, ये इस पर्टिकुलर कोड वर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्योंकि बच्चा का क्लीन स्लेट होता है, उसका माइंड, हिज पर्सनालिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ दिस थ्री वेरिएबल्स। तीन वेरिएबल कौन है, घर में सीखता है, स्कूल आके सीखता है और आसपास नाइबरहुड में भी सीखता है, ठीक है। एक बच्चा इन तीन जगह से सीखता है, इसको सोशलाइजेशन भी बोलते हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग ना। बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं और पायस होते हैं। लिटिल चिल्ड्रन इज इनोसेंट एंड sans क्रिमिनल टेंडेंसीज, okay, he is not aware of right or wrong, truth or falsity, affinity और hostility। उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, ट्रूथ क्या है फॉल्सिटी क्या है, उसको कुछ नहीं पता, एफिनिटी ट्रिनिटी कुछ नहीं पता उसको, ठीक है। वेलफेयर क्या है, हार्म क्या है, सही क्या गलत क्या, किससे उसका भला होगा किससे नुकसान होगा, सेल्फ वो खुद के लिए क्या करता है दूसरों के लिए क्या करता है, उसको कुछ नहीं पता होता उसको। एज ही गेट्स वेरियस एक्सपीरियंस, जब उसको एक्सपीरियंस मिलता है वो धीरे धीरे करके वो सारा चीज सीखता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना पर्सनैलिटी डेवलप करता है। He learns from them and develops a personality of his own। Now, what is receptive? A child, a little child is very much receptive और absorber। छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजों को सीखते हैं, एक्शंस को सीखते हैं, बिहेवियर को बहुत जल्दी सीखते हैं वो लोग। And the word receptive means full of ability to learn the described or narrated actions, instruction और experience। वो सीखते हैं बहुत जल्दी।
assimilate करते हैं, the students assimilate, accept the very company, environment, instruction which is given or presented to him or her or them. ठीक है, जो भी चीज उनको सिखाया जाता है, जो इस एनवायरनमेंट में उसको पढ़ाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है, दे quickly get them, assimilate them, accept them. Then the next point is children are independent nature. The child is independent by nature. He does not like to be chained or controlled. That's why student centered education को promote किया जाता है. According to NCERT, remember very important thing. हम लोग बहुत सारे सोचते हैं. We think a lot of things. लेकिन अपने हिसाब से आंसर नहीं कर सकते हैं. We cannot answer the question by our own will. जो एनसीएफ में बोला गया है, लास्ट एनसीएफ 2005 में आया था, जो एनसीएफ में बोला गया, वी हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंगली. ओके. ओके. और एनसीएफ बोलता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, सोसाइटी सेंटर्ड है, तो हमको वही लिखना पड़ेगा. हम नहीं बोल सकते कि टीचर बच्चे को गाली देगा, मारेगा, ये सब हम नहीं लिख सकते. ठीक है, स्टूडेंट सेंटर एनसीएफ बोलता है, तो एनसीएफ जो बोलेगा वही सही है, क्योंकि आरआईसी एग्जाम एनसीईआरटी कंडक्ट करता है और बाकी सारे एग्जाम में भी एनसीएफ को फॉलो किया जाता है. इन सीयूसीटी एग्जाम ऑल्सो एनसीएफ इज followed. Okay, and that is written by NCERT. और RI इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज RI इज कंट्रोल्ड बाय NCERT. RI इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय NCERT. यू नो NCERT का किताब आपने जरूर पढ़ा होगा, आपके 10th या 12th में, या फिर बचपन में पढ़ा होगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द चाइल्ड डज नॉट वांट एनीथिंग टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम. इम्पोज कोई करेगा तो बच्चे को पसंद नहीं आता है. पनिशमेंट वगैरह बच्चों को नहीं देना चाहिए. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके. डिफरेंट नेचर, बच्चों का डिफरेंट नेचर होता है. हर एक बच्चे का अलग अलग नेचर होता है. वन चाइल्ड कैन बी स्टबर्न while अदर कैन बी शाय, another कैन बी इंट्रेपिड, मतलब कोई और बहुत ज्यादा चालाक होगा, कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बेवकूफ होगा. ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है. ठीक है. Students are not same. All the students are not same. They have different nature. Nature उनका अलग अलग होता है. स्टूडेंट का नेचर जो है अलग अलग होता है. ठीक है. ओके, क्लियर. फाइनली वन चाइल्ड, लेट मी टेल यू वन थिंग. यहाँ पे जो एक इंटरप्रीड लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रीड? इंटरप्रीड मीन्स विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर. निर्भीक होता है, तो कोई मतलब कोई जो है वो बहुत ज्यादा डरता है, डरपोक होता है. कोई निर्भीक तो कोई डरपोक होता है. मीक मतलब जो नहीं डरता. इंटरप्रीड मतलब, सॉरी, इंटरप्रीड मतलब जो नहीं डरता. मीक मतलब जो डरता है. सो फाइनली वन चाइल्ड कैन बी लिबरल while another can be harsh. We cannot change his nature so easily. हम उनका नेचर इजीली चेंज नहीं कर सकते. Hence, it is better to deal with him only by explaining the thing, concept and phenomenon to him. हम कैसे उनके साथ डील करेंगे? हम उनका नेचर तो चेंज नहीं कर सकते. जैसे एटीट्यूड चेंज करना डिफिकल्ट होता है, बच्चों का नेचर चेंज करना भी डिफिकल्ट होता है. तो हम चीजों को उनको समझाएंगे, वो खुद से उसको इनकलकेट करेंगे. इफ वी डू नॉट डू सो, वी माइट वेस्ट ऑल आर एफर्ट. अगर हम उनके ऊपर जबरदस्ती थोपेंगे कोई चीज, तो दैट इज ए टोटल वेस्ट. वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे चीजों को. हम उनको समझाएंगे, कंसेप्ट, फिनोमेना सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तभी जाके वो चीजों को सीखेंगे. डिफरेंट एंड्यूरिंग एबिलिटी. द एंड्यूरिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट. ठीक है ना, बच्चों का एंड्यूरिंग एबिलिटी भी सेम नहीं होता हर एक बच्चे का. ठीक है, और हर एक बच्चे का एंड्यूरिंग एबिलिटी जो है सेम नहीं होता. सम ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड, व्हाइल कुछ जो है लेजी होते हैं और गिव वे वेरी इजीली. ओके. लॉन्ग एंड्यूरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लास्टिंग करने का एबिलिटी सबका सेम नहीं होता. कोई हार्ड वर्किंग बहुत देर तक काम करते हैं, सम आर लेजी और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. टीचर मस्ट लर्न अबाउट देयर मेंटल एबिलिटी एंड देन एंगेज देम विद वर्क. हमको बच्चों का मेंटल एबिलिटी को समझना पड़ेगा बिफोर टीचिंग देम और बिफोर एंगेजिंग देम इन वर्क. बच्चों का इंटरेस्ट भी सेम नहीं होता. द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट सेम और सिमिलर. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर टू नो द इंटरेस्ट. उनका इंटरेस्ट को जानना पड़ेगा, अबाउट देयर ओरिएंटेशन और इंक्लाइनेशन अबाउट डिफरेंट पीस ऑफ वर्क. किस वर्क, कौन सा काम उसको अच्छा लगता है, ये चीज भी हमको जानना पड़ता है. डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल आर ऑल्सो देयर. हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल भी सेम नहीं होता, आईक्यू सेम नहीं होता. द इंटेलिजेंस लेवल्स ऑफ द चिल्ड्रेन आर नॉट सेम. सम चिल्ड्रेन possess exceptionally high intelligence level, some others have general intelligence level, while some others could be of low intelligence level and hence slow learners भी हम उनको बोलते हैं. क्लियर. ओके. नाउ अब तक हमने क्या देखा? Till now we have seen attitudes towards education, sorry, attitude towards children हमने अभी तक देखा. Now we will see attitude towards education.
ओके, सेकंड टॉपिक इज फ्रॉम मतलब फर्स्ट टॉपिक का सेकंड बीट, फर्स्ट बीट हमने कंप्लीट किया एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, द फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक सेकंड बीट इज second subtopic is attitude toward education or attitude toward subject. Now we shall discuss the second element, which is the subject. It is a very important element. The teacher and his students work together only for its transmission. Transmission means from किसी एक से किसी दूसरे तरफ जाता है, फॉरवर्ड टू लेटर, मतलब टीचर से स्टूडेंट के अंदर जो नॉलेज का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफरेंस होता है, उसके क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन, नॉलेज ट्रांसमिशन बोला जाता है। देखो, ए टीचर मस्ट गेट कंप्लीट नॉलेज अबाउट हिज सब्जेक्ट। टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट नॉलेज चाहिए। इसीलिए जब आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर बनने से पहले एक सीटेट का आपको एग्जाम देना पड़ता है। सीटेट क्लियर करते टाइम आपका पूरा नॉलेज का टेस्ट किया जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज एज वेल एज द बी.एड नॉलेज, बी.एड में जो पढ़े थे उसका भी नॉलेज और सब्जेक्ट का भी नॉलेज, कंटेंट नॉलेज और जो टीचिंग नॉलेज, दोनों का, टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजिकल नॉलेज का भी टेस्टिंग होता है। उसके बाद जब आप फिर से जब आगे बढ़ते हो, परमानेंट टीचर बनना होता है, तो आप केवीएस एनवीएस का भी एग्जाम देते हो एंड वहां पे भी आपका कंप्लीट नॉलेज के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है थ्रू इंटरव्यूज। एग्जाम के साथ इंटरव्यू भी होता है। हाउएवर देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स व्हिच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, हम उनको देखेंगे। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट या फिर एजुकेशन क्या होना चाहिए। द सब्जेक्ट मस्ट बी इन ट्यून विद मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट। आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ यू आर टीचिंग इन क्लास 6, टीचिंग इन क्लास 6, देन जो है क्लास 10 का टॉपिक आप उनको नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, 6 है तो उनका मेंटल लेवल अभी जो है उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाओगे। ओके, एंड next is the subject must be molded or prepared according to the interest and attitude of the student. स्टूडेंट का एटीट्यूड और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, सब सब्जेक्ट को ओरिएंटेड करके रखना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कोड वर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड होता है अभी का एजुकेशन सिस्टम, याद रखना, ये कोड वर्ड सब लिख के रखो। ओके, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन पार्ट्स, जितना भी पूरा होल सब्जेक्ट मैटर को आप पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना है। जो भी पढ़ाते हो लॉजिकल पार्ट में डिवाइड करके धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ना है और उनको हेल्प करना है अंडरस्टैंड करने के लिए। स्टूडेंट वी हैव टू फोकस दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न और अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर और नॉट। हमको देखना है कैसे वो समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी यूज्ड। आप जब भी कोई चीज पढ़ाते हो, यू मस्ट illustrate them through example, through graphs, charts, tables, like that, and this will help the students to assimilate the subject matter easily. Okay, then students should do activities related to subject matter. हम उनको activities दे सकते हैं। The more theoretical and idealistic presentation of subject matter is not desirable. We should entail them in some practical knowledge, practical activity. Okay, जो कि नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस के साथ हम उनको इनकलकेट कर सकते हैं, फील्ड विजिट करा सकते हैं, कोई और ग्रुप एक्टिविटी दे सकते हैं। तो एक्टिविटीज हमको देना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज हमको उनके अंदर डेवलप कराना चाहिए। यूजफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो हम चीज पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट मैटर जो है यूजफुल होना चाहिए। इफ सब्जेक्ट मैटर सिलेक्टेड फॉर टीचिंग इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट, दे विल टेक मच इंटरेस्ट इन द प्रोसेस। सिमिलरली, इफ करिकुलम कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टूडेंट इज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट, दे विल गेन मच फ्रॉम इट। ओके, जो करिकुलम बनाया गया है फॉर स्टूडेंट इज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड इंटरेस्ट, दे विल गेन मच फ्रॉम इट। Okay, clear? Okay, similarly curriculum constructed for student is according to the need and interest। हमको curriculum भी जो बनाएंगे वो भी उनके need और interest के according बनाना है। Subject as a medium only, subject matter selected for teaching is only a medium to reach the end, that is the modification of students behavior according to the need of the hour, and reliance of the teacher on the content is only minimal, and he uses the text as tool and realize fact, ये टेक्ट नहीं है, फैक्ट जो है as tool and realize the objective। सब्जेक्ट जो मीडियम है, हमको पढ़ाना है उनको, जो चीज मॉडिफिकेशन कराना है, वी हैव टू चेंज द बिहेवियर और मॉडिफाई द स्टूडेंट्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। नीड ऑफ द आवर जो है उससे बेटर ये चीज आप याद रखो, नीड ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी चाहता है उसी के अनुसार हमको स्टूडेंट को बनाना है। तो सेकंड सब टॉपिक जो था वो भी हमारा कंप्लीट हुआ, that is attitude towards children। Now third one is attitude toward teaching profession, and in your teaching profession you will find or you will come in contact with your colleagues, you will come in contact with other elements of the society that we will discuss now। अभी वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, and I think that this will be very much lengthy
वी शुड मेक इट इन 2 पार्ट्स, हम इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग एक और पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितना अभी तक जितना पढ़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ सकते। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है, दोज हु हैव नॉट परचेज द कंप्लीट कोर्स फॉर RICE और CUCED, दे कैन कॉन्टैक्ट द अबव नंबर टू गेट द फुल कोर्स। तो हम लोग अभी देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन और एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन ऑफ ए टीचर। टीचर का टीचिंग प्रोफेशन के साथ क्या रिलेशनशिप, क्या एटीट्यूड है, दैट वी विल डिस्कस। टीचिंग प्रोफेशन में जैसे आई टोल्ड यू कि कोलीग्स आते हैं, प्रिंसिपल, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। कोलीग्स, प्रिंसिपल, अदर ऑफिस स्टाफ, गार्जियंस, ये सब होते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस दिस थिंग्स नाउ। नाउ सी, there are several other teacher in the institution who work with the teacher। बहुत सारे अलग भी टीचर होते हैं, आपके साथ काम करते हैं। Tolerating their criticism and misbehavior, maintaining good human and dignified relationship with them, and working in cooperation with them in different program of school, accepting healthy advice given by them, facing some problem due to close relationship between some of these teachers and principal, mutual addressing in the presence and absence of students are some of issues that teacher has to deal efficiently। टीचर को बहुत सारी चीज डील करना पड़ता है। आपको वो सब चीज डील करने के लिए, क्या सब चीज मैं अभी फिर एक बार रिपीट करूंगा, वो सब चीज डील करने के लिए यू रिक्वायर टॉलरेंस, कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, क्लियर एंड फियरलेस स्पीकिंग। तो एक टीचर को बाकी टीचर से, बाकी कोलीग से क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। मिसबिहेवियर कोई करता तो वो आपको सहना पड़ेगा। अच्छा रिलेशनशिप, गुड ह्यूमन एंड डिग्निफाइड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उनके साथ। उनके साथ कोऑपरेशन करना करके रहना पड़ेगा। मान लो कोई आज नहीं है तो उनके क्लास आप जो है क्या बोलते हैं उसको, जो एडजस्टमेंट क्लास आप कर लेना, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस में। क्लियर। उसके बाद आप वहाँ उनके साथ एक हेल्दी एडवाइस अगर कोई देते हैं तो एक्सेप्ट करना। कोई कोई प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। ये सब आपको करने के लिए आपको सहानुभूति होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, और एक जो आपका जो स्पीकिंग है वो भी क्लियर एंड फियरलेस होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एटीट्यूड ऑफ ए टीचर टुवर्ड्स हिज कॉलीग इज पॉजिटिव। जब आपका एटीट्यूड किसी और आपके कॉलीग के प्रति पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा, तभी जाके ये सब चीज जो है पॉसिबल हो सकता है। इफ हिज एटीट्यूड इज नेगेटिव तो माल एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ सकता है। क्लियर। इफ हिज एटीट्यूड नेगेटिव इन एनी वे, माल एडजस्टमेंट विल बी द रिजल्ट। प्रिंसिपल के साथ भी आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है। सो योर एटीट्यूड शुड बी गुड इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आल्सो एंड अदर ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। If attitude of teacher towards the principal and other officer of the education department is positive, he will follow their instruction with pleasure, and if and it will definitely improve its teaching and student will benefit from it. If teacher consider the orders of his office as burden, the student will be great loser. An order given by officer sometimes create problem for a teacher and he feels trouble to follow them ड्यू टू इज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑफिसर। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा किसी ऑफिसर या फिर प्रिंसिपल की तरफ, तो आप उनको फॉलो करते टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपको अगर आप अगर टीचर कंसिडर करते हैं जो ऑफिस का जो ऑर्डर मिलता है बर्डन की तरह, तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लॉस होगा। अगर आप अच्छे से डील करोगे, सारी चीज को प्लेजरेबल डील करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के डील करोगे, तो स्टूडेंट का बेनिफिट होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, सोसाइटी सेंटर्ड है, तो स्टूडेंट का लॉस कदापि नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लॉस शुड नॉट बी देयर एनीवेयर। ओके, a teacher can overcome this problem by maintaining balance in his personality. A balanced personality is always in the interest of student because the today's education system is student centered education। इसीलिए आपके अंदर एक बैलेंस पर्सनालिटी होना चाहिए वो, और वो हमेशा स्टूडेंट का तरक्की के प्रति नियोजित होना चाहिए। A teacher is supposed to be bear all sorts of pain and hardship in the interest of students। स्टूडेंट के लिए आपको कभी भी पेन और हार्डशिप सहन करना पड़ सकता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ट्रबल को प्लेजर में। क्लियर। गार्जियन के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, और भी कम्युनिटी मेंबर के साथ रहना चाहिए। टीचर को सोसाइटी में आइडियल माना जाता है। टीचर इज कंसिडर्ड एन आइडियल इन द सोसाइटी एंड
and an ideal is not supposed to behave in a way that is not liked by society. सोसाइटी को जिस बिहेवियर पसंद है उस तरह से आपको काम करना है, सोसाइटी जो पसंद नहीं करता उस तरह से आपको बिहेव नहीं करना है। लेकिन अगर सोसाइटी गलत काम कर रहा है तो यू कैन चेंज दैट बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। अगर सुपरस्टिशन वगैरह है तो टीचर जो है चेंज कर सकता है by performing himself. Now, if attitude of a teacher towards guardian and other dignitary is negative, तो आपको criticism सहन करना पड़ेगा, frustrate हो जाओगे. This will frustrate the teacher as well as the student will be get loss. Student will be in a loss. Student को भी loss होगा. Similarly, proper development of student requires cordial and healthy relationship between teacher and guardian, and both of them consider each other assumptions and limitations. तो अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और गार्जियन के बीच में अगर स्टूडेंट का प्रॉपर डेवलपमेंट कराना है तो। कभी कभी अगर इन टेंशन इरप्ट्स होता है, इफ सम टेंशन इरप्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, इट इज द टीचर हु विल हैव टू कंसीडर इट। टीचर को ही कंसीडर संभालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ही हु इज कंसीडर रेशनल। टीचर को ही सबसे ज्यादा रेशनल माना जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है, आइडियल माना जाता है उसको। ए टीचर शुड गिव अप हिज रिजर्व एटीट्यूड एंड कम क्लोजर टू द गार्डियन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट को लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए टीचर को खुद संभल के गार्जियन को मनाना पड़ेगा। Being attentive to the concerns and then satisfying them in best manner possible make a teacher a real teacher। अगर आप सिचुएशन को, कंसर्न्स को देखते हुए, अटेंटिव बनते हुए अगर उनको सेटिस्फाई कर पाओगे बेस्ट मैनर जो पॉसिबल है आपके लिए वो यूज करके, अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पाओगे गार्जियन एज वेल एज स्टूडेंट, देन आप ही सही टीचर हो। ऑल दिस पॉसिबल जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। उसके साथ साथ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है, उसके रिलेटेड आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। A teacher can be frustrated by seeing the poor economic, social and political environment of the country, but he is expected to behave in the class in such a manner that student may not suffer due to his frustration। टीचर देखो, अगर दुनिया में, अगर इंडिया में अगर मान लो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा इस तरह से बिहेव करना है स्टूडेंट के सामने कि आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह से किसी भी बच्चे को लॉस ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। ही हैज टू लीड एंड गाइड द सोसाइटी बाय यूजिंग हिज स्टूडेंट्स एज टूल। आपको स्टूडेंट को टूल्स की तरह यूज करना है, उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है, उनका तरक्की करवाना है, एंड आपको फुल अटेंशन देना है स्टूडेंट की तरफ। कम्युनल और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है कभी, पॉवर्टी, करप्शन, अदर माल प्रैक्टिस, रैम्पेंट करप्शन वगैरह सब कुछ होता है सोसाइटी में, बहुत जोर शोर से अगर कुछ खराब चीज होता है सोसाइटी में, देन इट में अफेक्ट द थिंकिंग प्रोसेस एंड एटीट्यूड ऑफ ए टीचर। बट आपका एटीट्यूड इसमें चेंज होगा, बट ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्कूल एनवायरनमेंट को इन सब चीज से दूर रखोगे। यू हैव टू प्रोटेक्ट द स्कूल एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल दिस इल इफेक्ट्स and all these socio-economic evils। Students and society both expect him to be impartial and mentally healthy। हमेशा आप impartial रहोगे और mentally healthy रहोगे, ये student as well as society दोनों expect करते हैं आपसे। Teacher has to prove himself to be pure in his test and only he can bring about the positive and healthy change in the society। बिकॉज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है, और टीचर को सोसाइटी में आइडियल माना जाता है, तो आप ही पॉजिटिव और हेल्दी चेंज ला सकते हो सोसाइटी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है एटीट्यूड में कि आपका खुद का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। ए टीचर इज ऑलवेज रिच बिकॉज हिज स्कॉलरशिप एंड एग्जैल्टी कैरेक्टर। क्योंकि टीचर हमेशा धनी होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण है, उसके अंदर स्कॉलरशिप है, उसके अंदर मतलब कैरेक्टर प्रॉपर है उसके अंदर, ठीक है। ही शुड नॉट हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन द स्कूल। कभी उस खुद को इन्फीरियर फील नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इज पुअर बैकग्राउंड। अगर इकोनॉमिकली पुअर हो तो भी कभी भी आपको पुअर फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सलेंस है, स्कॉलरशिप है, कैरेक्टर आपका हाई है। ही इज द टॉप मोस्ट पोस्ट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में आइडियल माना जाता है, टॉप मोस्ट पोस्ट पे उसको रखा जाता है, क्योंकि उसका डिग्निफाइड टीचिंग प्रोफेशन है। टीचिंग प्रोफेशन इज वेरी डिग्निफाइड। ओके, हेंस हिज बिहेवियर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सल्टेड पोजीशन। एंड इफ ही कंसिडर्स हिमसेल्फ इंफीरियर, तो लॉस होगा, बच्चों का ही लॉस होगा, ठीक है। अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो फील करता है, ही विल नॉट बी एबल टू वाइप आउट द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर कोई पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो वो स्टूडेंट भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा, वो खुद को इंफीरियर सोचेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए टीचर खुद को इंफीरियर कभी नहीं समझना चाहिए। द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज ए टीचर is the most important point। The background of a teacher starts in the fact
विद द टीचिंग वर्क एंड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, तभी आपका बैकग्राउंड जो है टीचर के तरह रहता है, डिग्निफाइड बैकग्राउंड आपका बन जाता है जिस दिन आप ज्वाइन करते हो। इफ ही इज पायस इन हिज कंडक्ट ही विल ऑलवेज बी कंसिडर द टॉप ऑफ सोसाइटी, अगर आप सही तरह से काम करोगे तो हमेशा सोसाइटी के टॉप में रहोगे, ठीक है। उसके बाद व्हेन एनी सोशल चेंज कम्स इन द सोसाइटी, जब भी सोसाइटी में कोई सोशल चेंज होता है, इट फर्स्ट अफेक्ट द स्कूल थ्रू इट्स स्टूडेंट, ठीक है। सोसाइटी में कभी भी चेंज जब होता है तो स्टूडेंट सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। तो हेल्दी चेंज लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसका है? ए टीचर। ए टीचर इज सपोज टू वेलकम हेल्दी चेंजेस एंड रेजिस्ट अगेंस्ट दोज व्हिच आर कंटेम्पुअस जो चेंजेस होते हैं उसको हमको क्या करना है? अवॉइड करना है, हेल्दी चेंजेस को वेलकम करना है एज ए टीचर। इफ इज एटीट्यूड इज नेगेटिव, तो जितने भी चेंजेस होंगे वो सब खराब ही होंगे। Okay, if his attitude is negative towards all this irrespective of their consequences, he will be misfeed among the student। अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहा तो मिसफीड हो गए, अगर आपका एटीट्यूड सही है तो you will be feed among the students। It is more necessary for a teacher to go along with the time rather than diverting current age of all time। If any student can argument his market value in the globalized world just by learning English, he should be given chance to do so। अगर कोई बच्चा चाहेगा कि वो उसका मार्केट वैल्यू के ऊपर आर्ग्यू करना चाहता है बाय लर्निंग इंग्लिश, तो उसको चांस देना चाहिए। शुड नॉट बी लोडेड विद क्लासिकल एंड ऑब्सोल्यूट लैंग्वेज, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू स्टडी रिलीजन एंड फिलोसफी इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली इनजस्टिस टू देम। अगर आप उनको सिर्फ रिलीजन एंड फिलोसफी पढ़ाओगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना पढ़ाओगे, तो ये इनजस्टिस कहलाएगा। तो प्रॉपर सोशल चेंज जो चाहिए अभी, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। टीचर का खुद का पर्सनालिटी भी उसका एटीट्यूड को डिटरमाइन करता है, ठीक है, क्लियर। डिटरमाइन करता है टीचर का जो है एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशन में, उसका खुद का पर्सनालिटी डिटरमाइन करता है। इफ टीचर इज नॉट एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी प्रॉपर्ली ड्यू टू हिज अनबैलेंस्ड पर्सनालिटी, अगर आपका पर्सनालिटी सही नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, डिस्ट्रेस है, जो कि आपको आपके बच्चों को आपके स्टूडेंट को पॉल्यूट कर रहा है, और हिज ओन फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रेस आर पॉल्यूटिंग द प्यूपिल्स इटसेल्फ, और हिज माल एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, सोसाइटी में आप अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, मिक्स मिक्स हिम माल एडजस्ट इन द स्कूल, अगर सोसाइटी में आप सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो तो आप स्कूल में भी सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पाओगे, और आप कभी भी एक इफेक्टिव टीचर नहीं बन पाओगे। ए टीचर नीड्स मेंटल हेल्थ टू द सेम एक्सटेंट एज ही नीड्स फिजिकल हेल्थ, जितना हद तक आपको फिजिकल हेल्थ चाहिए उतना आपका मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग रहना चाहिए। वॉट एवर कॉन्ट्राडिक्शन ही हैज इन हिज पर्सनैलिटी, इट शुड नॉट कम बिफोर दिस पीपल, बिफोर हिज पीपल। अगर आपके पर्सनैलिटी में कोई कंट्राडिक्शन है, आपके घर में कोई दिक्कत है, आपके मतलब बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, बच्चों के साथ झगड़ा हुआ है, भैया भाभी किसी के साथ भी झगड़ा हुआ है, फैमिली में पिताजी के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो आपके स्टूडेंट के आगे वो नहीं दिखना चाहिए। आप हमेशा स्टूडेंट के आगे कूल रहना चाहिए। ही नीड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मोर देन दैट ऑफ हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जितना चाहिए उससे बहुत गुना ज्यादा आपका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरह से होना चाहिए, सो दैट ही कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटी। क्योंकि अगर आपका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही तरह से होगा तो ही आप दूसरों का पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। Pupils consider their teacher as an ideal and model, so model should not be mutilated। मॉडल जो है खुद वो म्यूटिलेटेड नहीं होना चाहिए, खुद खराब नहीं होना चाहिए, खुद डिफरेंट चीजों से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मॉडल हो, रोल मॉडल कभी भी जो है खुद म्यूटिलेटेड और जो मतलब बेटर होना चाहिए हमेशा, ठीक है, म्यूटिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्लियर। ओके, अगर एग्जैक्ट मीनिंग बोलूंगा म्यूटिलेटेड का, तो म्यूटिलेटेड मीन्स डैमेज समथिंग सीवियरली, सीवियर डैमेज आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नॉट लूजिंग द पैसेंस, कभी भी किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में कोई आपके ऊपर कमेंट करे, गाली दे, तो भी आप अपना पैसेंस लूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी मैं पहले बैचेस में डिस्कस कर चुका हूँ। नॉट सिटिंग इडियल इन फेवरेबल कंडीशन आर द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर डज पोजेस, ठीक है ना। कभी भी पैसेंस नहीं हराना चाहिए, इडियल कभी नहीं बैठना चाहिए फेवरेबल कंडीशन में, हमेशा आपको कुछ काम करना चाहिए, बच्चों का डेवलपमेंट के ऊपर आपको हमेशा काम करना चाहिए। ओके, ना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ ए टीचर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आपके टीचिंग के ऊपर कॉम्पिटेंसी आपको हासिल करना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूसली आपका जो है आता रहेगा। जैसे मैं पहले वीडियो जैसे बनाता था, जैसे पढ़ाता था,
अभी मेरा वीडियोज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उस तरह से आप भी जब टीचर बनोगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपका इन फ्यूचर होता रहेगा। ओके, आगे आगे होता रहता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। ओके, जब आप B.Ed डिग्री मिलता है तभी से आपको आपका पर्सनल प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इफ एटीट्यूड ऑफ द टीचर इज पॉजिटिव इन दिस रेस्पेक्ट, द टीचर विल रिमेन ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट की तरह बन के रहोगे, मतलब हमेशा सीखोगे। स्टूडेंट सीखता है ना, तो एक टीचर भी एक तरह का स्टूडेंट होते हैं, वो भी सीखते रहते हैं अपने गलतियों से और इम्प्रूव करते रहते हैं, अपना प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस को डेवलप करते रहते हैं। इफ इट सो द स्टूडेंट विल श्योरली गेट बेनिफिट। अगर आप एक स्टूडेंट की तरह अपने लाइफ को आगे बढ़ाओगे तो एक स्टूडेंट का बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। प्रोग्रेस ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस शुड नेवर स्टॉप। आपका जो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में जो प्रोग्रेस हो रहा है वो कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, मतलब लाइफ लॉन्ग आपको सीखते रहना चाहिए, एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। इफ इट हैज नेवर स्टॉप, अगर ये कभी रुक जाता है, इट मीन्स टीचर हैज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड प्रोफेशनल ग्रोथ। टीचर का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में ग्रोथ जो है रुक जाता है। तो हमने टीचर का जो एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति क्या एटीट्यूड रहता है, और टीचिंग प्रोफेशन के प्रति क्या एटीट्यूड रहता है, उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो टीचिंग इंटरेस्ट है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।